देखिए, लिक्विड ड्रॉप मॉडल आपको पढ़ा रहे थे। लिक्विड ड्रॉप मॉडल आपको पढ़ा रहे थे। दरवाज़ा ये उड़का दे जरा। लिक्विड ड्रॉप मॉडल, लिक्विड ड्रॉप, ये आपको पढ़ा रहे थे। 2 पॉइंट आपको लिखवाए थे। देखो, ये वाली लाइट जरा बंद करो, ये वाली। लिक्विड ड्रॉप मॉडल आपको पढ़ा रहे थे। 2 पॉइंट हमने आपको लिखवाए थे लिक्विड ड्रॉप मॉडल में। दूसरा देखिए, तीसरा पॉइंट है थर्ड पॉइंट है the molecule in a liquid drop, the molecule in a liquid drop, the molecule in a liquid drop, जो molecule है liquid drop में, the molecule in a liquid drop, liquid drop interact over short ranges, interact over short ranges as compared to the diameter of drop, as compared to the diameter of drop, to the, हाँ जब विशाल चलो चाय ले आओ, as compared to the diameter of drop, as compared to the diameter of drop, diameter of drop, ठीक है। Similarly, nucleon in a nucleus, similarly nucleon, proton and neutron, similarly nucleon in a nucleus, proton, neutron, जो न्यूक्लियन है न्यूक्लियस के, similarly nucleons, proton, neutrons, proton and neutrons, protons and neutrons interact with their
बात ना करो with their immediate neighbors. Immediate neighbors. अब आइए सरफेस टेंशन इफेक्ट। दरवाजा बंद कर देना। सरफेस टेंशन फोर्सेस एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ ड्रॉप। सरफेस टेंशन फोर्सेस एक्टिंग at the surface of drop. Surface tension forces acting at the surface of drop. Acting at the surface of drop. Surface of drop. ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से पोटेंशियल बैरियर इफेक्ट्स, पोटेंशियल बैरियर इफेक्ट्स Similarly, potential barrier effects at the surface. हाँ, वो 2 पॉइंट लिखा चुके थे, उसी के आगे लिक्विड ड्रॉप। पोटेंशियल बैरियर इफेक्ट्स एक्टिंग एट द surface of nucleus. Acting at the surface of nucleus. वो न्यूक्लियस के सरफेस पे लगता है। एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ acting at the surface of nucleus. The molecules in a drop move over short ranges with thermal velocity. The molecules in a drop move over short distances move over short distances with thermal velocities. Short distances with thermal velocities. ऐसा ही न्यूक्लियस में होता है। सिमिलरली न्यूक्लियस
possesses definite kinetic energy, definite kinetic energy. Nucleus possesses a definite kinetic energy. By which nucleons are moving in the nucleus, by which nucleons are moving in the nucleus. This energy is obtained by bombardment of light particles on the nucleus. Light particle on the nucleus. If liquid drop is made to oscillate, liquid drop is made to oscillate, if liquid drop is made to oscillate, it tends to separate into two particles. Tends to separate into two particles. क्षितिज ये चिपका दो दरवाजे. It tends to separate into two particles. It tends to separate into two parts. करिए particles into two parts of equal size. If liquid drop is made to oscillate, liquid drop को oscillate कराया जाए, it tends to separate into two parts of equal size. वो बट टूट जाता है दो पार्ट्स में इक्वल साइज के. इसी तरीके से सिमिलरली certain heavy nucleus, similarly certain heavy nucleus break into
lighter parts of nucleus lighter parts of nucleus after capturing neutron after capturing neutron in nuclear fission, neutrons in nuclear fission, नाभिकीय विखंडन में, इन न्यूक्लियर फिजन में ऐसा होता है। इन न्यूक्लियर फिजन आपको हमने पहला पॉइंट जो लिखवाया था, पहला पॉइंट ये था, पहला पॉइंट स्मॉल लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल। पहले तो कुछ थ्योरी अलग लिखवाई थी, लिक्विड ड्रॉप के उससे नहीं मतलब। पहला पॉइंट है स्मॉल लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन इफेक्ट। सरफेस टेंशन। सिमिलरली एटॉमिक न्यूक्लियस इज आल्सो स्फेरिकल। एटॉमिक न्यूक्लियस भी स्फेरिकल होता है, वहाँ पर ड्यू टू सरफेस टेंशन फोर्सेज एंड पोटेंशियल बैरियर। दूसरा, जैसे लिक्विड ड्रॉप जो होती है डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होती है, वैसे न्यूक्लियस की भी जो डेंसिटी है वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होती है। लिक्विड ड्रॉप की डेंसिटी वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट, न्यूक्लियस की भी डेंसिटी वॉल्यूम। अब तीसरे पॉइंट, द मॉलिक्यूल इन ए लिक्विड ड्रॉप इंटरेक्ट। जो मॉलिक्यूल है लिक्विड ड्रॉप के इंटरेक्ट करेंगे शॉर्ट रेंजेस। एक रेंज होती है 10⁻⁻10 के ऑर्डर में या 12 के ऑर्डर में, उसी में करते हैं एज़ कंपेयर टू द डायामीटर ऑफ ड्रॉप के डायामीटर की तुलना में, उसी के अकॉर्डिंग। सिमिलरली न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इंटरेक्ट विद देयर इमीडिएट नेबर्स। वो भी इंटरेक्ट करेंगे अपने अगल बगल वाले इमीडिएट नेबर्स से। सरफेस टेंशन फोर्सेस एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ ड्रॉप। ठीक है, सरफेस ड्रॉप के सरफेस पर भाई गोल तो तभी बनी रहती है ना, पृष्ठ तनाव बल उस पर कार्य करते हैं। इसीलिए इसी तरीके से पोटेंशियल बैरियर इफेक्ट्स एक्टिंग एट द सरफेस ऑफ न्यूक्लियस। पोटेंशियल बैरियर इफेक्ट वर्क करेगा न्यूक्लियस के सरफेस पर। द मॉलिक्यूल इन ए ड्रॉप मूव ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। जो मॉलिक्यूल है ड्रॉप में मूव करता है शॉर्ट डिस्टेंसेज विथ थर्मल वेलोसिटीज। शॉर्ट डिस्टेंसेज में मूव करेगा, किससे? थर्मल वेलोसिटीज से। सिमिलरली न्यूक्लियस पोसेसेस डेफिनेट काइनेटिक एनर्जी। अब डेफिनेट काइनेटिक एनर्जी, जैसे कोई लाइट पार्टिकल है, इंसिडेंट हुआ, बम्बार्डमेंट हुआ, डेफिनेट काइनेटिक एनर्जी बाई विच न्यूक्लियन आर मूविंग इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियन भी मूव करते न्यूक्लियस। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाई बम्बार्डमेंट ऑफ लाइट पार्टिकल ऑन द न्यूक्लियस। बम्बार्डमेंट हो रही है, वो इंसिडेंट हो रहा है इस पर, आपका न्यूक्लियस पर जो लाइट पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, यही कहलाते हैं। इफ़ लिक्विड ड्रॉप इज मेड टू ऑसिलेट, लिक्विड ड्रॉप को आप ऑसिलेट कराते हो तो वो ब्रेक हो जाता है। तो इफ़ लिक्विड ड्रॉप इज मेड टू ऑसिलेट इट टेंड्स टू सेपरेट इनटू टू पार्ट्स ऑफ इक्वल साइज। वो दो पार्ट में बट जाएगा इक्वल साइज के। सिमिलरली सर्टेन हैवी न्यूक्लियस ब्रेक इनटू लाइटर पार्ट। इसी तरीके से सर्टेन हैवी न्यूक्लियस ब्रेक कर जाएगा
हल्के पार्ट्स में, लाइट पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, आफ्टर कैप्चरिंग न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियर फिजन, जब न्यूट्रॉन कैप्चर कर लेगा न्यूक्लियर फिजन। अब आइए इसी में है सेवन नंबर पॉइंट, द existence of non-zero quadrupole movement, non-zero quadrupole movements shows that many nuclei shows that many nuclei are non-spherical, The existence of non-zero quadrupole movements shows that many nuclei are non-spherical। भाई ये अगर क्वाड्रपोल मूवमेंट अगर ज़ीरो होता है तो स्फेरिकल है, और अगर ज़ीरो नहीं होता है तो वो स्फेरिकल नहीं है। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो क्वाड्रपोल मूवमेंट shows that many nuclei are non-spherical. This phenomena can be described well within the framework of liquid drop model। लिक्विड ड्रॉप मॉडल का जो फ्रेमवर्क किया गया तो ये फिनोमिना वहाँ पर भी लिक्विड ड्रॉप में भी एग्जिस्ट करता है, ये फिनोमिना लिक्विड ड्रॉप में भी एग्जिस्ट करता है। अब आइए small liquid drops are combined together, small liquid drops are combined together, कंबाइन कर जाते हैं, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म स्मॉल लिक्विड ड्रॉप्स ऑफ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज ड्रॉप ऑफ सर्टेन
डेंसिटी, सर्टेन डेंसिटी या फिक्स्ड डेंसिटी। सिमिलरली सिमिलर फिनोमिना यही फिनोमिना सिमिलर फिनोमिना एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। सिमिलर फिनोमिना एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस in the nuclear fusion similar phenomena exist in the nucleus in nuclear fusion। ये फिनोमेना एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर फ्यूजन में, नाभिकीय संलयन में। नाभिकीय संलयन में ठीक है। अब आइए ज़रा इसी पर एक न्यूमेरिकल है, determine the radii of a O16 and Pb208 nucleus O16 and Pb02 nucleus given that are not 1.4 Fermi, are not 1.4 Fermi। ये है न्यूमेरिकल। क्षितिज परेशान कर रहे, बोर्ड चमक रहा है हल्का सा, चिपका दो या कुंडी लगा दो, कुंडी लगा दो। एक जगह चमक ही रहा वो नहीं हटेगा, पर ये वाला ये है न्यूमेरिकल। तो आपको एक फार्मूला अभी हमने लिक्विड ड्रॉप में बताया है कि भाई वॉल्यूम न्यूक्लियस का डायरेक्टली, जो वॉल्यूम है न्यूक्लियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास नंबर के, ए के। भाई जैसे कोई लिखा जाता है तो ये होता है, जैसे ये लिखा है तो जेड ए, तो ए है मास नंबर और नीचे वाला जेड है एटॉमिक नंबर। तो वॉल्यूम न्यूक्लियस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास नंबर के। अब
वॉल्यूम की 4/3 पाई आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 है। ठीक है, अब इससे आ गया आर क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a की पावर 1/3 की। जब बराबर किया तो आर नॉट आता है, आर बराबर आर नॉट a की पावर 1/3 की। आर नॉट कांस्टेंट है, इस आर नॉट की वैल्यू है 1.4 फर्मी। आर नॉट की वैल्यू है 1.4 फर्मी, ये आर नॉट की वैल्यू। अब देखिए बच्चों, वन 1.4 फर्मी। अब देखिए 8O16 फॉर O16 है, O16 तो R बराबर आर नॉट a की पावर 1/3, 1.4 फर्मी 1.4 टू द पावर 10 टू द पावर माइनस में 1 पॉइंट या फर्मी में बना रहने दो। a की वैल्यू है 16 की पावर 1/3। ठीक है, ये तो ये आएगा 16 का 1/3 निकाल लो, फर्मी में है क्योंकि फर्मी की वैल्यू नहीं लिखी। तो ये देखो क्यूब रूट लो 16 का, तो ये आएगा 3.53 फर्मी। फॉर PV208, फॉर PV208 R बराबर 1.4 फर्मी टू 20, इसका करोगे 8.29 फर्मी। 8.29। नहीं, वो ये होता है ना, उसको बोल देते हैं, वो ज़रा तुम कंफ्यूज, जैसे 1 AMU बोल दिया जाता है। 90 कितना है 931.5 मिलियन है, ये आपको हमने बताया। पर वो 1 AMU के साथ C² का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये है 1 AMU इंटू C², 931.5 या कह सकते हो 1 UC²। ठीक है, 931.5 ये होता है, C² का मल्टीप्लाई है। ये एटॉमिक मास यूनिट में C² का मल्टीप्लाई होके ही वो वैल्यू होती है 931.5 मिलियन। तो वो आपको याद, अब जब बना कई बार लोग लिख देते हैं, ठीक है, कि 1 AMU इंटू C² या 1 UC²,
ठीक है, तब आप जानते हो कि ये ठीक है। पर जिसमें नहीं लिखा जाएगा उसमें भी आप ध्यान रखिएगा 1 AMU इंटू C²। एटॉमिक मास यूनिट में C² से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। कई जगह हिंट में दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा, तब वो आता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वही हम वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करते। ये है, उसमें कन्फ्यूज़न होता है ना कि कई बार सिंपल लिख दिया था 1 AMU 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन, आप सोच रहे हो उससे C² का और मल्टीप्लाई करें, वो नहीं करना, वो C² उसमें कंजर्व रहेगा। आगे देखिए, एक बार जरा से न्यूमेरिकल देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। डिटरमाइन द रेडियाई ऑफ ए O70 O16 एंड Pb208 न्यूक्लियस गिवन दैट R0 1.4 फर्मी। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास नंबर के, वॉल्यूम की वैल्यू होती है 4/3 πr³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के, r³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A के, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर 1/3 के। जब बराबर करोगे तो r बराबर R0 A की पावर 1/3 के। अब देखिए फॉर O16 लेते हैं तो उसमें A की वैल्यू है 16 की पावर 1/3, तो 1.4 और इसका क्यूब लो तो ये आएगा 3 पॉइंट। करके देख लो, मोबाइल है आपके पास। Pb208 की पावर 1/³ ले, ठीक है, क्यूब रूट लोगे तो इसकी वैल्यू ये आएगी 8 पॉइंट। ठीक है, फर्मी में ही निकाल दिया, उसमें कोई फ़ायदा नहीं था। अब देखिए एक और न्यूमेरिकल हम इसका बता दें। ये अभी इसमें यही फार्मूला यूज हुआ था। A nucleus with A बराबर 235 splits into 2 nuclei, splits into 2 nuclei whose mass number whose mass numbers are in the ratio 1 to। एक और जो फाइंड द रेडियाई ऑफ न्यूक्लियर। फाइंड द रेडियाई ऑफ nucleus। Find the radii of new nucleus। In new nucleus A का मान 235 स्प्लिट्स इनटू 2 न्यूक्लियाई, ये बढ़ जाता है 2 न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर का रेशियो 1 और 3 है। फाइंड द रेडियाई ऑफ न्यू न्यूक्लियस। तो आप देखिए, मान लिया A1 A2 है, इफ A1 एंड A2 are the mass numbers
of the nuclei then A1 बराबर भाई 1 और 2 का रेशियो है तो 1/3 235 ये हो गया। A2 में A2 की वैल्यू 2/3 2/3 अब यहां पर अब देखिए रेडियाई जो न्यू नंबर्स की हैं, एक R1 बराबर R0 A1 की 1/3 R0 की वैल्यू है 1.4 1.4 A1 की वैल्यू है 1.4 फर्मी है 235 अपॉन फर्मी। इतने फर्मी सॉरी बोलो भाई ये 1 है और 1 और 2 जुड़ जाता रेशियो में आप लिखते हैं ना, तो इस वाले को लिखोगे तो पहला न्यूक्लियस है वो 1 में और दूसरा वाला न्यूक्लियस क्या है 3 में, तो टोटल कितना है 3। तो अब 1/3 में पटा और 2/3 में कुछ चीज़, यही तो होता ना। जैसे 1 और 2 का रेशियो है तो मतलब 3 पार्ट बट रहा है, एक में एक पार्ट एक, तो आप क्या कर लीजिए 1 और 2 जोड़ लीजिए तो हो गया 3। एक में हुआ 1/3 एक में हुआ 2/3। अब इसको सॉल्व करिए, R1 का मान आया 5.99 फैरेड। अब R2 की वैल्यू R0 A2 की पावर 1/4 1.4 A2 का मान 2/35 470/3 की पावर 1/4 470, तो ये आएगा 7.55 फर्मी 7.55 फर्मी ये